Hi and welcome to our mains answer writing daily initiative day 16. Today we are going to discuss about global MPI index की context में poverty से related जो issue है उसको हम discuss करेंगे. Global MPI index that is multi dimensional poverty index 2022 के according इंडिया ने 40 करोड़ पॉपुलेशन 40 करोड़ लोग जो है अपने इंडिया में उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला है इन द 15 ईयर पीरियड बिगनिंग बिटवीन 2005 टू 2019-20. So, इस context में we have taken a question today over multidimensional poverty. Our question for today is India has successfully taken out large proportion of its population from multidimensional poverty yet still faces the issue of poverty on a significant scale. Discuss the progress of India in light of Global MPI Report 2022 along with steps taken to address poverty and the challenges still associated with it and yet to be addressed. So we have 4 parts in this question. The first thing asks us to mention about how India has successfully taken out. We'll have to cite the report on how India has successfully taken out a large proportion of its population from multidimensional poverty, but at the same time we will also have to show or present or illustrate how issue of poverty in India is still a big issue in India. It is not इतना रिडक्शन करने के बाद भी पॉवर्टी में इंडिया पॉवर्टी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत ख़त्म हो गई है, नियरली एंड पे पहुँच गई है. इट इज़ स्टिल द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट बिगेस्ट इशू ऑफ आवर कंट्री. सो इस चीज़ को हमको इन दोनों को बैलेंस करके प्रेजेंट करना है कि हाउ इंडिया इज सक्सेसफुली टेकन आउट large proportion of its population from poverty, but still it is facing poverty as the biggest issue of the country. इंडिया की प्रोग्रेस हमको डिस्कस करना है कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर ग्लोबल MPI रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द प्रोग्रेस विच इंडिया हैज़ डन इन कंटेक्स्ट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी along with the steps taken. कौन कौन से steps हमने लिए हैं in order to reduce the poverty and what are the challenges which are still associated with it and yet to be addressed. This is the question which have been asked. So I have separately written down the 4 components which have been specifically asked in the question in order for us to address. The first thing we will have to discuss in brief about the poverty status of the India in light of presentation or findings of the global MPI index. The second thing we will have to show the progress of the reduction in poverty in India. The third thing we will need to discuss is the steps which have been taken by Government of India to reduce poverty. And the last thing we need to discuss are the challenges still associated with the poverty remaining in the country. So we will discuss all these issues. I hope the question is clear to you. Clearing the question is the biggest thing you need to do before starting to write the answer. So let's start with our answer, that is intro, body, conclusion. In the intro we can mention the global GPI. We can start with the global MPI index and the findings of that index related to India, relevant to India. So according to global MPI index, in the period between 2005-6 and 2019-21, 41 करोड़ people जो हैं इंडिया में, 41.5 करोड़ people जो हैं इंडिया में, they have exited poverty in India, that is multidimensional poverty. This concept or the term is important. You need to understand what is multidimensional poverty. There is a difference between simply saying the poverty and talking about multidimensional poverty. इस index के according, this index is prepared by OPHI and एक non-profit organization and UNDP. This index measures multidimensional poverty. इनके according जो poverty है, that should not be measured from a single dimension, that should not be seen from a single point of view. It should be seen from multiple point of view. एक पर्सन जो है उसके पास एक चीज़ हो सकती है. नॉर्मली हम पॉवर्टी को नापने के लिए ये देखते हैं कि किसके पास कितने पैसे हैं या कितना रिच है या कितनी मनी की सफिशिएंसी है. बट अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जस्ट डोंट हैव वन डायमेंशन. For example, there may be a household which may not be earning a high amount of income, but it may be getting a good quality education provided by government and good healthcare infrastructure provided by government. In that case,
इनकी इनकम भले ही लो हो बट इनके एक्सपेंडिचर भी उतने लो होंगे क्योंकि स्टेट इज़ प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज। सो उस कारण से ये फैमिली जो है इट विल नॉट बी लिविंग इन डेस्परेट कंडीशन, इट विल नॉट बी लिविंग इन वेरी पुअर कंडीशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशन. With the amount of savings they will be making, they will be able to improve the standard of living of themselves. So if education and healthcare are provided, there are three dimensions which are seen while measuring this index by this organization. The first relates to healthcare, that is nutrition and child mortality is measured under it. The second dimension is education, and the third dimension is living standard of the household or people living in the country. So इन तीन डायमेंशन के बेसिस पे देखा जाता है कि कितने लोग हैं जो मल्टीपल डायमेंशन से इन ये 3 इंडिकेटर्स के अंदर में सब इंडिकेटर्स होते हैं. टोटल 10 सब इंडिकेटर्स हैं. इन टैब्स 10 सब इंडिकेटर्स में कितने लोग कितनी चीज़ों से डिप्राइव्ड है. इफ़ अ पर्सन इज़ जस्ट लैकिंग इन न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत, बट अदर देन दैट किसी भी 9 इंडिकेटर में वो लैक नहीं करता है, देन ही इज़ नॉट मल्टी डायमेंशनली पुअर. He is just lacking a single dimension or he is just lacking in health care, and उसमें भी एक single sub indicator में lack कर रहा है, and that can be corrected easily. So that is not multidimensionally poor. According to this index, a person suffers when he basically remains deprived of multiple indicators under this index. ये जो 10 इंडिकेटर हैं, इन 10 इंडिकेटर में जब काफ़ी सारे इंडेक्सेस काफ़ी सारी चीज़ों पे if a person is not able to attain what he should be able to attain to live a basic life of respect, then he will be called as multidimensionally poor. So he should have good living standard, he should have good education, and he should have good health. And a person is considered a multidimensional poor under this index if he is facing deprivation इन एटलीस्ट 1/3 ऑफ द इंडिकेटर्स. मतलब ये जो 10 हैं इनमें से अगर 3 या 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स में अगर वो डेप्रीवेशन फील करता है या उसके पास उन चीज़ों की शॉर्टेज है, देन ही इज़ कंसिडर्ड मल्टी डायमेंशनली पुअर. और अगर 10 में से 5 इंडिकेटर या उससे ज़्यादा, दैट इज़ मोर देन हाफ इंडिकेटर में अगर वो डेप्रीवेशन फेस करता है, देन ही इज़ कंसिडर्ड एक्सट्रीमली मल्टी डायमेंशनल पुअर. सो दिस इज़ हाउ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज़ कैलकुलेटेड. इंडिया में 41 करोड़ पीपल जो पहले मल्टी डायमेंशनली पुअर हुआ करते थे, अब वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, और या तो अब वो किसी भी टाइप की पॉवर्टी फेस नहीं करते हैं ऑन दी स्टैंड इंडिकेटर, या फिर सिंगल डायमेंशन में कुछ डेप्रीवेशन फेस करते हैं 1 और 2 डायमेंशन में, बस इससे ज़्यादा नहीं. इसके अलावा इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी जो है पिछले 15 ईयर्स में इट हैज़ कम डाउन हेविली फ्रॉम 55% अप्रॉक्सीमेटली टू 16%. दैट इज़ नियरली 2/3 ऑफ पॉवर्टी, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस्ड इन द कंट्री. सो दिस इज़ व्हाट इज़ प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. सो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. वी हैड टू शो कि हमारे यहाँ प्रोग्रेस क्या है. दिस क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे वी हैड टू डिस्कस कि हमारे MPI ग्लोबल MPI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने क्या प्रोग्रेस करी है पॉवर्टी के रिडक्शन में, और ये हमारे फर्स्ट लाइन को भी शो करता है कि हाउ इंडिया सक्सेसफुली टेकन आउट लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. बट स्टिल क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये पूछता था कि इंडिया में स्टिल पॉवर्टी इज़ अ बिग इशू. सो हाउ इंडिया में पॉवर्टी इज़ अ बिग इशू. नाउ वी कम टू दिस पार्ट दैट इज़ बॉडी पार्ट. यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. सो बॉडी पार्ट में वी स्टार्ट विथ अनएड्रेस्ड चैलेंजेस. कौन कौन से चैलेंजेस है विच हैव नॉट बीन एड्रेस्ड टिल नाउ. सबसे पहले हमारे यहाँ जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है वो अभी भी बहुत लो है. हमने 3 दिन पहले ही एक हंगर इंडेक्स पे रिपोर्ट जो आई थी इंडिया के 107th रैंक जिसमें थी, उस पर एक आंसर लिखा था और उस पर डिस्कस किया था कि कैसे हमारे यहाँ न्यूट्रिशन स्टंटिंग वेस्टिंग जो है बच्चों में बहुत हाई है. सो इवन दो हमारे यहाँ पॉवर्टी के लेवल बहुत ख़राब नहीं हुए हैं तब से पिछले 15 ईयर्स में, लेकिन अंडर न्यूट्रिशन हमारी कंट्री में अभी भी बहुत हाई है. मतलब पीपल आर नॉट गेटिंग मील्स अप टू देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. दिस इज़ अ अनएड्रेस्ड चैलेंज, फर्स्ट अनएड्रेस्ड चैलेंज एसोसिएटेड विथ पॉवर्टी इन इंडिया. ये NFHS 3 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
3, 4 और 5 में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके बीच में इम्प्रूवमेंट जिस रेट से होना चाहिए, जिस रेट से हमारे यहाँ पॉवर्टी गिर रही है उस रेट से, उसी रेट से या उससे ज़्यादा रेट से हमारे यहाँ न्यूट्रिशन के स्टैटिस्टिक्स इम्प्रूव होने चाहिए थे, बट वो ऐसा हुआ नहीं। हमारे यहाँ अंडर न्यूट्रिशन अभी भी बहुत हाई है। द सेकेंड इज़ हमारे यहाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी अभी भी बहुत हाई है। हमने 41 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया है, बट 22 करोड़ पीपल स्टिल लिव इन पॉवर्टी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पुअर जो हैं वो हमारी कंट्री में रहते हैं। सेकेंड नंबर पे नाइजीरिया आता है 9.6 करोड़, जो बहुत पीछे है इंडिया से। At least 12 crore people are less poor in the second largest poor country in the world. This is the second issue related to poverty in India. The third is बच्चे हमारे यहाँ बहुत हाई लेवल में पॉवर्टी में जी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 9.7 करोड़ पुअर चिल्ड्रन जो हैं इंडिया में रहते हैं 2019-21 में स्टिल, which is more than total number of poor people, children, adults combined in any other country covered by global MPI. So we just now saw कि नाइजीरिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय नंबर ऑफ पुअर पीपल, वहाँ पे 9.6 करोड़ टोटल पुअर पीपल हैं, मतलब इंक्लूडिंग चाइल्ड, एडल्ट सब। बट इंडिया में 9.6 करोड़ जस्ट चिल्ड्रन पॉवर्टी के में रहते हैं, विच इज़ मोर देन एनी अदर कंट्री। मतलब दूसरी किसी भी कंट्री से कंपेयर करें तो वहाँ पे टोटल गरीब जितने हैं उनको भी हम काउंट कर लें, कंबाइंड एडल्ट एंड चाइल्ड, तो भी हमारे यहाँ चाइल्ड ज़्यादा हैं विच आर लिविंग अंडर पॉवर्टी। द फोर्थ इशू रिलेट्स टू इनइक्वालिटी। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से स्पेशली हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पॉवर्टी रिड्यूस हुई है बट इनइक्वालिटी उसी हाई रेट से बढ़ी है। सो ऑक्सफैम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टॉप 1% पॉपुलेशन जो है वो 73% ऑफ वेल्थ होल्ड करती है। सो बेसिकली पॉवर्टी रिडक्शन का सेंस तब बनता है जब आप इक्वलिटी भी अचीव करने में हेल्प करो और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड कर सको। देन देर इज़ रीजनल इम्बेलेंस। पॉवर्टी जो है स्पेसिफिकली कुछ पार्ट ऑफ कंट्री में कंसनट्रेटेड है सिंस लॉन्ग टाइम, जैसे कि बीमारू स्टेट्स, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ पे पॉवर्टी कंसनट्रेटेड है। एंड रीजनल इम्बेलेंसेस के कारण वहाँ पे मूवमेंट्स फ्यूल होते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ सेपरेट स्टेट और डिमांड फॉर सेसेशन फ्रॉम कंट्री। देन क्राइम, हाई क्राइम। पॉवर्टी जितना ज़्यादा होती है क्राइम रेट सोसाइटी में उतना हाई होता है, जिससे वुमेन की सिक्योरिटी, अदर सोशल लेवल्स जैसे कि कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूल होती हैं। देन पॉवर्टी एक विशियस साइकिल है। पॉवर्टी विशियस साइकिल इसलिए है क्योंकि पॉवर्टी को सस्टेन करती है। जो आदमी पुअर होता है ही इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड गुड हेल्थ एंड गुड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। उनके बच्चे भी बिना एजुकेशन के बड़े होते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होता है, एंड दे कीप ऑन डूइंग लो पेइंग वर्क, जिससे उनकी पॉवर्टी कंटिन्यू रहती है। सो पॉवर्टी इज़ अ विशियस साइकिल, इज़ अनेबल टू बी स्टॉप्ड टिल येट। देन जेंडर इम्पैक्ट। वुमेन के ऊपर पॉवर्टी का अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वुमेन ऑलरेडी पेट्रियार्ची से सफ़र करती है, वुमेन रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन से सफ़र करती है। एड टू दिस पॉवर्टी एक्ट एज डबल शॉक और डबल कहना चाहिए डबल वायलेंस ओवर द वुमेन। देन वल्नरेबल सेक्शंस, अगर हम कंपेयर करें तो SC, STs, माइनॉरिटीज़ के ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिविंग अंडर पॉवर्टी as compared to rest of the population. So basically this creates a division in the society. The vulnerable sections of marginalized sections जो होते हैं, they feel discriminated, they feel left out behind from the rest of the country, and this basically creates a conflict between both the group, vulnerable sections and the rest of the society. देन पॉवर्टी एंड नक्सलिज्म। पॉवर्टी का नक्सलिज्म से बहुत इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिलेशन है। नक्सलिज्म, पॉवर्टी जहाँ ज़्यादा होती है, नक्सलिज्म को, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण नक्सल्स को वहाँ पे यूथ मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड स्प्रेडिंग देयर आइडियोलॉजी अगेंस्ट द स्टेट। देन अनअकाउंटेड इम्पैक्ट ऑफ कोविड। ये जो MPI रिपोर्ट बनी थी, ये MPI रिपोर्ट 2019 में तैयार हुई थी, दैट वाज बिफोर कोविड पेंडेमिक स्टक, एंड इसलिए जो डाटा है दैट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी कम्प्लीटली, बिकॉज आफ्टर कोविड, इन द पीरियड ऑफ 2 years of कोविड पेंडेमिक, more than 6 to 7 crore people in India
गॉट अंडर पॉवर्टी, कुछ बहुत सारे बच्चों के स्कूल छूट गए, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई. सो मोर देन 6 to 7 करोड़ पीपल वेर पुश्ड इनटू द पॉवर्टी अक्रॉस द कंट्री. So these were the challenges associated or issues associated with the findings in the report regarding the poverty in India. What are the steps which have been taken to reduce poverty in India? First, we have been trying to speed up economic growth so that per capita GDP income and the overall GDP जो है वो हमारी grow हो. You already know हमारी GDP जो है it is nearing around $3 trillion. So इसका जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, वी हैव बीन टारगेटिंग $5 trillion बाय 2027. जितनी हमारी ग्रोथ बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी एंड उतने ही ज़्यादा हम फास्ट ग्रो कर पाएंगे, लोगों को पॉवर्टी से और ज़्यादा बाहर निकाल पाएंगे. देन रूरल ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन. रूरल ग्रोथ के लिए हमारे यहाँ पॉवर्टी जो है ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में कंसनट्रेटेड है. मोर पॉपुलेशन ऑफ पुअर पीपल, मोर प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल लिव इन रूरल एरियाज़ देन इन अर्बन एरियाज़. सो दैट इज़ वाई वहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में डिपेंडेंस रहती है उनकी. सो हम कुछ टारगेटेड प्रोग्राम्स चला रहे हैं जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, किसान सम्मान निधि स्कीम, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए वेरियस प्रोग्राम्स, सो दैट इन प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को जॉब्स मिल सकें, लाइवलीहुड मिल सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एग्रीकल्चरल ग्रोथ से एग्रीकल्चरल इनकम बढ़े, फार्मर्स की इनकम की ग्रोथ हो, फार्मर्स की फैमिली इनकम बढ़े एंड उससे वहाँ पे पॉवर्टी रिड्यूस हो. देन इंफ्रास्ट्रक्चर का फास्ट डेवलपमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं वेरियस प्रोजेक्ट्स के थ्रू दैट हमारे एक्सपोर्ट, बिजनेस, ईज़ ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्रूव हो, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और पॉवर्टी रिड्यूस हो. ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू सो दैट लोगों में स्किल्स का डेवलपमेंट हो तो वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकें एंड दे विल बी एबल टू लिफ्ट आउट ऑफ देमसेल्फ फ्रॉम पॉवर्टी. नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं जैसे मेक इन इंडिया नाम का प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, एमएसएमई सेक्टर के लिए वेरियस स्कीम्स हैं सो दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ लिमिट कि वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर दे सकता है प्रोडक्टिव बने रहते हुए. जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट आएगी, वैसे वैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी मूव करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, मेक इन इंडिया भी सक्सेसफुल होगा एंड हम पॉवर्टी से ज़्यादा लोगों को निकाल पाएंगे. एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जैसे जैसे क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बेनिफिशियरीज या पुअर को मिलेगी, दे विल बी एबल टू गेट लोन्स एंड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस और एंटरप्राइज, जिससे वहाँ पे पॉवर्टी का रिडक्शन होगा. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दिस हैज़ बीन इन फंक्शन सिंस मोर देन 50 ईयर्स. इसमें इसके अंडर में लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे सब्सिडाइज फूड मिलने के कारण लोग जो हैं दे स्पेंड लेस ऑन देयर फूड, दे हैड टू स्पेंड लेस ऑन फूड प्राइसेस, ऑन फूड आइटम्स, बिग सिंस इन्फ्लेशन इज़ अ बिग इशू इन इंडिया. जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा लोगों की सेविंग्स उतनी कम होगी एंड दे विल बी अनेबल टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी मोर. देन डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी, हम कुछ डायरेक्ट ऐसे कुछ प्रोग्राम निकाल रहे हैं जिनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इनकम का सपोर्ट मिले, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिले, जैसे मनरेगा की स्कीम, जिससे लोगों के पास टफ़ टाइम्स जब होते हैं, जैसे कोविड जैसा भी कोई अगर शॉक या पेंडेमिक आता है तो भी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट रहे, दे डू नॉट लूज़ देयर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ और इनकम activities and they can be able to they will be able to sustain their families. Then schemes for providing utilities, किसी भी हाउस होल्ड के सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर होता है लाइफ का, दैट इज़ हाउसिंग. अगर हाउसिंग के लिए लोग जोड़ते हैं पैसे, उसके बाद घर खरीदते हैं, दे स्पेंड ऑल देयर सेविंग्स एंड द फर्स्ट नीड फॉर एनी फैमिली इज़ टू गेट अ हाउस. सो अगर बच्चों की पढ़ाई छोड़ के दे कीप ऑन एडिंग मनी, दे कीप ऑन सेविंग मनी सो दैट दे कैन बाय एन होम, एंड उस चक्कर में दे बेसिकली स्पेंड लेस ऑन देयर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली. सो उस केस में उनकी फैमिली जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाती घर के बनाने के चक्कर में. सो अगर हम ऐसी स्कीम्स जो इन यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना,
हाउसिंग फॉर ऑल बाय 22 स्कीम। ये स्कीम्स जो हैं लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे, कम प्राइसेस पे, बिल्कुल सस्ते रेट पे, चीपेस्ट रेट पे घर दिलाने की कोशिश करती है, सो दैट दे कैन सेव देयर मनी more and more and can use that for coming out of poverty. Then schemes for empowering people, कुछ स्कीम्स हैं जो लोगों को बड़े इनिशिएटिव लेने में सपोर्ट देती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये लोगों को एम्पावर करती है, लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाती है, एंड नॉट जस्ट दोज पर्सन हु आर गेटिंग बेनिफिटेड, उन बिजनेसेस के थ्रू कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करती है, जिससे more and more people can come out of poverty. So these are the steps which have been taken by Government of India in order to reduce poverty. This completes our body part. We have addressed all the things which have been asked in the question. Let's move on to the conclusion. So conclusion ये है कि हमारा जो SDG goal है, SDG goal का goal 1 basically aims to end poverty in all forms. End poverty in all forms. Please remember this SDG goal. This is very important, especially and particularly for ऐसे purpose. So SDG goal 1 जो है टारगेट करता है to end poverty in all forms. उसका भी टारगेट 1.2 है. इस गोल 1 के अंदर भी एक सब टारगेट है, जिसके अंदर में हमको पॉवर्टी को 2030 तक, बाय 2030 वी वांट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स बाय हाफ, बाय एटलीस्ट हाफ, मतलब 50% रिडक्शन हमको पॉवर्टी में करना है अक्रॉस वर्ल्ड वाइड बाय 2030। इंडिया में ये जो डेवलपमेंट है, पिछले 15 साल की जो फाइंडिंग है हुई है, जिसमें इट शोज़ कि 41 करोड़ पीपल हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि ये गोल जो है दिस इज़ टोटली अचीवेबल इफ़ देयर इज़ नेसेसरी पॉलिटिकल विल and reduction in corruption and increase in transparency and better implementation of policies and good governance. So अगर हम इन principles को follow करें तो there is a chance कि we will be able to achieve this goal and ultimately we will be able to completely eliminate or eradicate poverty in all forms across the country. So this is our conclusion. So I hope this is clear. This question is clear. In this question we answered कि how multidimensional poverty has reduced in the country, but what are the challenges which still remain in the country, what are the steps which have been taken by Government of India in order to reduce poverty, and lastly we discussed ki what are the goals associated with it in order to end the answer and end poverty. So I hope it is clear to you. Thank you very much for watching the video.